Hello, third class. How are you all? I hope you all are doing well. Let's start today's science class. Students, firstly tell me what is your favorite thing to wear and what makes it special? Students, we wear different kinds of clothes depending on the weather and what we like. Clothes are made from fibers. And what are fibers? Fibers are long threads which are used to make clothes. Clothes किससे बनते हैं? फाइबर्स से. और फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जिससे क्लॉथ्स बनते हैं. I hope you understand that. Students, today we are going to start our new block 20, fibers, and today we will learn to classify a fiber as natural or artificial. I hope it is clear to you all. Now, here is a question for you. Question is, what are the names of the fibers used to make the fabrics? Fabrics मतलब clothes. उन fibers के नेम क्या क्या हैं जिनका यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए एंड हाउ दे फील. और जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे फील होते हैं, कैसे महसूस होते हैं जब हम उन्हें टच करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द आंसर. कॉटन, जूट, वूल, silk and polyester. Clear? The cotton feels, this is the picture of cotton cloth. Cotton feels soft, light and has pores. This is jute. The jute feels rough, scratchy and heavier than cotton. Cotton से heavy feel होती है jute. Wool. The wool feels soft and warm. Wool जो होती है soft feel होती है और हमें warm भी रखती है. This one is silk. Silk feels soft, smooth and slippery. जो silk होता है वो slippery होता है और जब हम उसे touch करते हैं तो soft और smooth होता है. Clear? And it is also shiny. ये shiny भी होता है. देखिए कैसे shine कर रहा है ना silk cloth. This one is polyester. Polyester feels lighter and smooth. It is also a little shiny. ये थोड़ा सा shiny होता है. Silk जितना shiny नहीं होता, थोड़ा कम shiny होता है. Clear? I hope you understand the answer. Now students, tell me, where do you think these fibers come from? How would you sort these fibers into two groups? Let's discuss some important facts about this lesson. Students, there are two types of fibers. First one is natural and second one is artificial fibers. Natural fibers comes from either plants or animals. हमें plants और animals से मिलता है natural fiber. We get silk from silkworm. हमें silk कहाँ से मिलता है? Silkworm से. And we get wool from sheep. हमें शिप से क्या मिलती है? वूल, ऊन मिलती है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन. एंड जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल फाइबर्स. सो पोलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स मेड बाय अस इन फैक्ट्रीज. आर्टिफिशियल फाइबर कहाँ पे बनते हैं? हम उन्हें बनाते हैं, हमारे जैसे इंसान ही हमें उन्हें बनाते हैं. जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं कहाँ पे बनाते हैं? फैक्ट्रीज में. दीज फाइबर्स आर मेड यूजिंग केमिकल्स एंड समटाइम्स नेचुरल फाइबर्स. ईच फाइबर कैन बी यूजफुल इन सम वेज एंड नॉट एज यूजफुल इन अदर वेज. हर एक जो फाइबर होता है उसका अपना एक यूज़ होता है. ये नहीं है कि हम कॉटन के कपड़े बनाने के लिए सिल्क का यूज़ करेंगे. सो हर एक जो फाइबर है उसका अपना एक अलग यूज़ होता है. आर्टिफिशियल फाइबर्स आर ईजी टू टेक केयर ऑफ. दे आर लाइट एंड डू नॉट रिंकल ईजिली. क्लियर? एंड वुलन क्लॉथ्स हम क्यों वेयर करते हैं? वुलन क्लॉथ्स हेल्प अस कीप वार्म. वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म रखते हैं. I hope you understand that. Now students, please open your content book of science at page number 20.
Lesson number 1 is natural and artificial fibers. Let's start reading. Fibers are thread that are used to make fabrics. Clear? Fabrics मतलब clothes, कपड़ा. Different fibers are used to make different kinds of fabrics. Fabrics are used to make ड्रेसेस बनाने के लिए हम फैब्रिक का यूज़ करते हैं. एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक बेड शीट्स, बैग्स एंड टेबल क्लॉथ्स. ये सारे किससे बनते हैं? कपड़े से ही बनते हैं. सम फाइबर्स come from plants and some come from animals. Cotton and jute are plant fibers. Cotton comes from cotton plant and jute comes from jute plants. Wool and silk are animal fibers. Wool comes from sheep and silk comes from silkworms. All the fibers that come from plants and animals are called natural fibers. I hope you understand that. Next one is some fibers are made by humans in factories. These are called artificial or synthetic fibers. So, nylon, rayon and polyester are synthetic fibers. We wear clothes made of different kinds of fibers in different seasons. I hope lesson is clear to you all. Now, these are your keywords. First one is fiber, cotton, wool, synthetic, jute, silk, polyester. You have to write these keywords in your notebook. Now, please open your worksheet. S1 types of fibers. First question is, look at the fabrics and complete the table. So, fabrics जो भी हैं आपके आसपास, उनके बेस पे आपको टेबल को कंप्लीट करना है. आपको हर एक फाइबर का फैब्रिक लेना है और फिर आपको बताना है कि वो कैसा है. और उस जो भी आपने फैब्रिक लिया है, मतलब जो भी उस फैब्रिक से जो भी ड्रेस बन सकती है वो आपको बताना है. जैसे फर्स्ट वन कॉटन. कॉटन जो होता है वो कैसा होता है? नेम ऑफ द फैब्रिक इज कॉटन. हाउ डज द फैब्रिक फील व्हेन यू टच इट? जब आप उसे टच करोगे तो कैसा लगेगा कॉटन? सॉफ्ट एंड लाइट. सो विल राइट हेयर सॉफ्ट एंड लाइट. एंड सोर्स ऑफ द फैब्रिक, कहाँ से आया है कॉटन, कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से. सो यू विल राइट हेयर प्लांट. यू विल राइट इन प्रॉपर हैंड राइटिंग. नेम अ ड्रेस मेड ऑफ दिस फैब्रिक. शर्ट भी बन सकती है और फ्रॉक भी बन सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज जूट. जूट कैसा फील होता है? लाइट एंड स्क्रैची. एंड जूट कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स से. एंड जूट से क्या बन सकती है? साड़ी भी बन सकती है एंड जूट बैग्स भी बनते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज वुल. वुल जो है वो कैसी फील होती है जब हम उसे टच करते हैं? वार्म, सॉफ्ट एंड लाइट. एंड वूल कम्स फ्रॉम एनिमल. सो विल राइट हेयर एनिमल. वूल से क्या बन सकता है? स्वेटर. सो विल राइट हेयर स्वेटर. नेक्स्ट वन इज सिल्क. यू विल राइट हेयर सिल्क. सिल्क जो होता है वो कैसा फील होगा अगर हम उसे टच करेंगे तो? सॉफ्ट एंड शाइनी. सॉफ्ट एंड शाइनी फील होता है. एंड सिल्क कम्स फ्रॉम एनिमल. कौन से एनिमल से हमें सिल्क मिलता है? सिल्क वॉर्म से. एंड सिल्क से क्या बन सकता है? साड़ीज. सिल्क की साड़ीज बहुत फेमस होती हैं. नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर. पॉलिस्टर से क्या, पॉलिस्टर को टच करते हैं तो कैसा लगता है हमें? शाइनी लगता है. थोड़ा सा कम शाइनी होता है सिल्क से. एंड ये मैन मेड सोर्स है. सो यू विल राइट हेयर मैन मेड. एंड पॉलिस्टर से कौन सी ड्रेस जो बन सकती है वो है शर्ट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द चार्ट. आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है. सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. फाइबर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर. सो जो नेचुरल फाइबर है वो हमें किस से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. प्लांट्स से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? प्लांट से हमें मिलता है कॉटन.
एंड जूट, यू विल राइट हेयर कॉटन एंड जूट। और एनिमल से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं, सिल्क एंड वुल, क्लियर। एंड आर्टिफिशियल फाइबर कौन कौन से हैं, नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। सो यू विल राइट हेयर नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, what would happen if we had only one kind of fiber? अगर हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का फाइबर होगा तो क्या होगा, तो हम डिफरेंट तरह के जो क्लोथ्स हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास कॉटन होगा, सिर्फ कॉटन का फाइबर होगा तो सिर्फ हम कॉटन क्लोथ्स ही बना पाएंगे। तो कॉटन क्लोथ्स हमें विंटर में तो नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना, हमें विंटर के लिए कैसे क्लोथ्स चाहिए होते हैं, वुलन क्लोथ्स। सो हमें अगर हमारे पास सिर्फ एक ही काइंड का फाइबर होगा तो हमारे पास एक ही तरह की ड्रेसेस होंगी, क्लियर। सो आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन क्या होता है, प्लांट फाइबर होता है, वूल होता है वूल होता है एनिमल फाइबर, वूल क्या होता है, एनिमल फाइबर, एंड नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। सो आपको बताना है नेचुरल फाइबर में और आर्टिफिशियल फाइबर में क्या क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल फाइबर्स कम्स फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, बट आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड बाय humans in factories, clear. So you have to complete these two practice questions. Thank you everyone for watching this video.